आप सभी का स्वागत है सक्षम सोसाइटी की आज की क्लास में। और जैसा कि आज की हमारी क्लास है टैली के दूसरे पार्ट के ऊपर, जो कि फर्स्ट पार्ट हमने कल ले लिया था। और आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे लेजर और कैसे आप जर्नल एंट्रीज करते हैं। तो उसके लिए हमारे साथ विक्की गौतम जी ने ज्वाइन कर लिया है हमको। सो बिना वक्त गवाए मैं इन्वाइट करना चाहूंगा फरज जी को फॉर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टुडेस रिसोर्स पर्सन। ओवर टू यू फरज जी। Thank you, Abhishek ji. Good evening, everyone. I'm Farhat on the behalf of Saksham Rozgar Society. I would like to introduce our resource person, Mr. Vicky Gautam. He is a BCom Honours graduate from Motilal Nehru College, University of Delhi. He completed his internship at BGHSR and Associates LLP, a chartered accountancy firm, and later he continued working there as an auditor, where he gained practical exposure in auditing various companies. He has also worked with Samsung handling MIS, financial reporting, and overall accounting functions. Further, he worked as senior accountant in an engineering and construction company. Currently, he is working as a senior accountant at Castle India, a Germany based organization, and is also pursuing LLB to gain expertise in taxation and corporate law. Apart from his professional career, he has been actively involved in social work, contributing to NGOs such as Saksham Bharati, Magic Bus, and Saksham Rozgar Society. He has been mentored and guided by Ms. Jyotika Kalada, President of Saksham Rozgar Society, who has been a constant source of support and motivation since his school days. Now, I'm going to introduce our today's leading person, Ms. Jyotika Kalada. We are honored to introduce Ms. Jyotika Kalada, President of Saksham Rozgar Society and an advocate on record at the Supreme Court of India, a strong advocate for education and skill development. She is deeply committed to empowering youth through learning opportunities and practical learning, paving the way for more capable and confident generation. Thank you so much. Over to you, Abhishek ji. So thank you Faraj ji for the introductions, and now I'd like to invite our resource person to start the session. Over to you Vicky Gautam ji. Thank you so much, Abhishek ji, and thank you so much, Faraj ji, for the introduction, and thank you so much, Saksham Rozgar Society, and special thanks to our President, Saksham Rozgar Society, Ms. Jyotika Kalra ma'am, for giving this opportunity. और आप सभी जैसा जानते हैं कि हमारी जो बिजनेस एंड अकाउंट्स ट्रेनिंग की जो क्लासेस चल रही है, तो उसमें आज मेरी थर्ड क्लास है। तो फर्स्ट क्लास में आप सभी जानते हो कि हमने फर्स्ट क्लास में एक अमन। यस मैम। सॉरी फॉर इंटरप्शन। कल आपकी क्लास के बहुत सारे बच्चों के वो आए हुए ग्रुप के ऊपर, यस मैम। कंपनी फॉर्मेशन। तो उसके बारे में कब बताओगे, किसका ठीक है क्या है, और प्राइस देना है, किस किस का नाम है? ये अनाउंसमेंट मैम हम कल करेंगे। कल करेंगे, ठीक है ठीक है हम ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम मैम। तो आज हाँ, मैंने ये भी देखा कि जो हमने कल असाइनमेंट दिया था आप सभी को टैली में कंपनी क्रिएशन का, तो मैंने ये देखा काफ़ी स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वो बना के भेजा है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि हमारी जो कुछ कंडीशन थी उसके अंदर, जैसे कि 2 बजे से पहले भेजना था, ठीक है ना, और टॉप 15 बच्चों को देना था, जो बात हुई थी। तो वो दोनों कंडीशन को देखते हुए वो हम टॉप 15 की लिस्ट निकालेंगे कल, ठीक है। और जो टॉप 15 होंगे, और 2 बजे से पहले और टॉप 15 वाले, दोनों कंडीशन को देखते हुए जो भी आपके निकलेंगे स्टूडेंट, उनको हम कल प्राइज मनी देंगे, ठीक है, जो डिसाइडेड हुआ था। हाँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया टैली की रैली में कंपनी क्रिएशन के लिए, तो वो काफ़ी अच्छा था। और मैंने देखा है कईयों का, तो मैंने देख भी लिया है कि उन्होंने कंपनी भी काफ़ी बेहतर तरीके से बनाई है, बिल्कुल सेम जैसा हमने मांगा था वैसे ही बनाया। लेकिन मैंने कल वाले आपके होमवर्क वाले काम में मैंने एक चीज़ सब में नोटिस करी थी कि आप सभी ने डाटा जो सेव करना था वो डेस्कटॉप पे किसी ने सेव नहीं किया था। उन्होंने पाथ सेट नहीं किया किसी भी स्टूडेंट ने। पर कोई नहीं, उसकी बात हम कल करेंगे। तो अभी हम आज की क्लास की बात करते हैं। तो जो मेरी पहली क्लास हुई थी आप लोगों के साथ, वो हुई थी मन्नत फर्नीचर की स्टोरी के रिगार्डिंग, जिसमें हमने ये जाना था कि कोई मिस्टर अमन है जिनके पास एक आइडिया आता है,
और वो फिर भी किस तरीके से अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करते हैं, मैनिफेस्टेशन को कैसे मैनिफेस्टेशन करते हैं वो, और फिर आइडिया एग्जीक्यूट करने के बाद वो अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी क्लास में हमने क्या सीखा कि जो हमने अकाउंटिंग अमन की का स्टोरी में सीखी, समझी, और हमने एक नेट प्रॉफिट तक हम गए। उसके बाद हम उस चीज़ों को, उस सारे जितने भी हमने एक्सपेंस किए, जितने भी हमारी इनकम आई, उन सभी को कहीं ना कहीं हमें किसी सॉफ्टवेयर में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तो यूज़ कर रही है। तो उसके लिए हमने फिर पिछली क्लास में क्या सीखा कि टैली कैसे यूज़ करते हैं। और टैली में सबसे थोड़ा हमने टैली को जाना कि टैली में डाउनलोड, टैली को डाउनलोड कैसे किया जाता है, डाउनलोड करने के बाद फिर उसको रन कैसे किया जाता है, उसके बाद उसमें फीचर कैसे इनेबल होते हैं, उसके बाद कंपनी कैसे क्रिएट होती है। तो हमने ये सब चीज़ें कल सीख ली थी। तो आई होप आप सभी को कंपनी क्रिएट करना तो इवन आ ही चुका होगा। ठीक है, उसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर विथ लेजर क्रिएशन। तो आज हम जानने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। एक्सपेंडिचर के नेचर, मतलब किस किस नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, आज हम वो सब सीखेंगे। और साथ ही साथ में उन एक्सपेंडिचर को टैली में कैसे क्रिएट करना है, जो हमने कल डाटा क्रिएट किया था उसी के अंदर हमें उस एक्सपेंडिचर को किस तरीके से रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंडिचर के लेजर को बनाना कैसे है, आज हम वो चीजें भी सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी जैसा आपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे, सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, व्हाट इज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है? तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और इनकर्ड बाय अ बिजनेस टू अर्न इनकम और रन ऑपरेशंस। मतलब कि एक्सपेंडिचर एक ऐसा अमाउंट होता है, एक ऐसा पैसा होता है जो खर्च किया जाता है बिजनेस को इनकम अर्न करने में, इनकम अर्न करने में और अपने ऑपरेशंस को रन करने में। रन ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने जो भी काम करती है, उस काम को करने के लिए जो पैसा लगता है कंपनी के अंदर, ठीक है, वो सारा क्या होता है? एक्सपेंस। वो सब क्या होता है? खर्चा। एग्जाम्पल आप सभी ने कल देख ही लिया था, जैसे हम सैलरी दे रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, और हम मशीनरी खरीद रहे हैं, ठीक है ना, बिजनेस चलाने के लिए मशीनरी खरीद रहे हैं, हम रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे एक्सपेंस ही तो है। तो कभी भी बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपेंस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम एक्सपेंस करेंगे तभी तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जिस एक्सपेंस को करने के बाद हमारी इनकम जनरेट होगी, तो वो क्या होगा? हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है ना। और इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन कैश और इन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इट लीड्स टू अ रिडक्शन इन कैश। रिडक्शन इन कैश का मतलब क्या होता है कि आपके पैसे में कमी। जब भी आप कोई एक्सपेंडिचर करते हो तो उसके बदले आप उनको पैसा देते हो पार्टी को। एग्जाम्पल के लिए, आपने अपने फर्म, अपनी कंपनी के लिए आपने एग्जाम्पल के लिए मशीनरी परचेज करी, ड्रिल मशीन परचेज करी या फिर कटिंग मशीन परचेज करी, जिससे आप वुड, लकड़ी को आप काटोगे, ठीक है, कट करोगे। तो जो लकड़ी काटने के लिए आपने जो मशीन परचेज करी, तो उसके बदले आपने क्या किया? पैसा दिया। और जब आपने उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में जब पैसा दोगे आप, तो ऑटोमेटिक सी बात है वो रिडक्शन इन कैश हो जाएगा। मतलब कैश में कमी, आपके कैश में कमी हो जाएगी। तो उससे आपका एक्सपेंस का पता लगता है। और एन इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? कोई है, कोई बताना चाहेगा लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम कोई चीज खरीदते जैसे तो उसमें पैसे में कमी होती है और जो उस पैसे के बदले जो चीज मिलती है वो लाइबिलिटीज में आती है। नहीं नहीं, जो उस पैसे के बदले वो मिलेगा वो तो हमारा एक्सपेंस हो गया ना। लाइबिलिटी क्या होता है कि ऐसा कोई भी आप काम करो। जो हमें बाद में पे करनी होती है। हाँ हाँ देनदारी होती है सर, देनदारी। हाँ हाँ जी, जिज्ञासा ने बिल्कुल ठीक बताया कि वो लोन। देनदारी होती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ भी परचेज कर लिया, ठीक है, परचेज करने के बाद आपने तुरंत पैसा दे दिया, तो वो हो जाएगा रिडक्शन इन कैश। लेकिन आपने ऑन द स्पॉट अमाउंट पे नहीं किया, तो वो हो जाएगा आपका इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। मतलब कि आपकी लाइबिलिटी, आपका दायित्व बढ़ चुका है। आज नहीं तो कल आपको उसके अगेंस्ट में पेमेंट करनी है, उस एक्सपेंस के अगेंस्ट में आपको पेमेंट करनी है। अगर आपने ऑन द स्पॉट पेमेंट कर दी एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आपको बोलेंगे रिडक्शन इन कैश। लेकिन अगर आप ऑन द स्पॉट अमाउंट पे नहीं करते, तो आपके लिए वो इट विल बिकम अ लाइबिलिटी फॉर यू, दैट इज इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था व्हाट इज एक्सपेंडिचर के अंदर। ठीक है,
अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इन टैली। अब टैली के अंदर हमारे पास, या टैली में या नॉर्मल जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं बिजनेस के अंदर, वो हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमेशा जो आपके एक्सपेंडिचर होते हैं इन्हीं दोनों भागों में होते हैं, ठीक है, इन्हीं दो पार्ट्स में होते हैं, सेपरेशन होते हैं। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एग्जाम्पल मशीनरी। अब जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब इन्होंने क्या बताया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मतलब कि आपने ऐसा खर्चा किया जिसका उपयोग आप आने वाले 1 साल से ऊपर तक करोगे, ठीक है ना, जिसकी लाइफ 1 साल से कम है। एग्जाम्पल आपने मशीनरी परचेज करी, तो मशीनरी हमेशा 1 साल से ऊपर की ही लाइफ होती है, उसकी 5 साल की लाइफ होती है, 10 साल की लाइफ होती है, ठीक है ना। तो मशीनरी की वैल्यू हमेशा ज्यादा भी होती है और उसकी जो लाइफ होती है वो हमेशा 5 साल या 10 साल की होती है। और 1 साल से ऊपर लाइफ होगी तो क्या बन जाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा, क्योंकि वो आपकी लॉन्ग टर्म हेल्प के लिए है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टाइप है आपके लिए, ठीक है ना। और जो आपका ये मशीनरी, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जो मशीनरी परचेज की है जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, वो आपका फिक्स एसेट में आएगा टैली के अंदर। किस में आएगा? फिक्स एसेट में आएगा। अब फिक्स एसेट मतलब क्या होता है? वही जो भी आपको मैंने बताया। फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिस एसेट की वैल्यू 1 साल से ऊपर की होती है, ठीक है ना। अगर 1 साल से ऊपर की उसकी वैल्यू है तो आपके लिए फिक्स एसेट बन जाएगा। पहली कंडीशन ये होती है। और दूसरी कंडीशन होती है उसका अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे नॉर्मल बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब लॉन्ग टर्म मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, बड़ा अमाउंट खर्च कर रहे हो, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और जो आपका फिक्स एसेट होता है उसका इफेक्ट पीएनएल में नहीं आता, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आता, वो आपके किस पे आता है? इफेक्ट आपका बैलेंस शीट में आता है। अब अब दो चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या किसी को पता है इसके बारे में? कुछ आइडिया है तो बता दो, आगे आगे दे तो आगे मैं बताता हूँ आपको। बिल्कुल बेसिक, किसी को पता है तो। तो बैलेंस शीट में हम असेट और लायबिलिटी को दिखाते हैं, और जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है एट द ईयर एंड में। बिल्कुल जी, जिज्ञासा आपने बिल्कुल ठीक बताया कि बैलेंस शीट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर हमें ये पता लगता है कि हमारे पास बिजनेस में हमारे पास कितनी एसेट्स हैं और हमारे पास कितनी लाइबिलिटीज हैं, ठीक है ना। एसेट मतलब वो चीजें जो हमारे बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रही है, जो हमारे पास एज एसेट पड़ी है। एग्जाम्पल आपकी मशीनरी, आपके पास एक तरीके का इन्वेस्टमेंट टाइप पड़ा हुआ है, ठीक है ना, वो सारी आपकी एसेट हो जाती है। और लाइबिलिटी मतलब क्या है? वो जो आपने एसेट परचेज करी उसके बदले आपने पेमेंट नहीं दी तो आपके लिए लाइबिलिटीज बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए आपने मशीनरी परचेज करी और आपने पेमेंट नहीं करी, वो आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। आपने कंपनी से लोन लिया, किसी बैंक से लोन लिया और आपने लोन को पेमेंट नहीं किया, लेकिन फ्यूचर में तो आपको करना ही है, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगी, वो आपकी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी। तो बेसिकली सिंपल मीनिंग में आपको बताऊं तो बैलेंस शीट मतलब क्या होता है? एक फाइनेंशियल इमेज होती है। तो बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल इमेज ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। वो अब तक की होती है, मतलब किसी पीरियड की नहीं होती, वो अब तक की। मतलब अगर आप बैलेंस शीट आज तक की देख रहे हो तो आज तक का पूरा स्टेटस होगा उसका बैलेंस शीट, ठीक है। वो कोई स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं होता, वो अप टू डेट के लिए होता है बैलेंस शीट, ठीक है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमेशा एक पीरियड के लिए होता है, जैसे 1 साल के लिए होगा कि आपने 1 साल के दौरान कितना पैसा कमाया। और पीएनएल में क्या पता लगता है? पीएनएल में आपको ये पता लगता है कि ड्यूरिंग द पीरियड, जो आपका पीएनएल स्टेटमेंट, फॉर एग्जांपल आप पिछले साल का ले लो, पिछले साल जो आपका फाइनेंशियल ईयर गया है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर हमारा लेटेस्ट गया है पीछे, वो कौन बताएगा? 2025-26। बिल्कुल सही है जी, ऐसा जो भी हमारा पिछला जो फाइनेंशियल ईयर अभी गया है 2025 और 26, उसमें हमारा जो पीएनएल अकाउंट बना होगा, पीएनएल स्टेटमेंट बना होगा, उसमें आपको पता लगेगा कि 25-26 में मैंने कितने पैसे कमाए या फिर मेरे को लॉस हो गया कम अपने बिजनेस के अंदर। तो आपको उससे क्या पता लगता है? आपको अपना प्रॉफिट और लॉस पता लगता है आपको अपने पीएनएल अकाउंट से, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये बैलेंस शीट और पीएनएल में इफेक्ट आता है। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि एसेट के अंदर आपको मशीनरी दिख जाती है। अब आता है आपकी बात रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आप सिंपल समझ लो, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होते हैं, जिसका अमाउंट बड़ा ह्यूज होता है, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर्स लाइक डेली एक्सपेंसेस, डेली बिजनेस एक्सपेंसेस। डेली बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? जो आपके बिजनेस में डेली यूज हो रहे हैं। जैसे आपकी मशीनरी है, आप मशीनरी रोज तो नहीं परचेज करोगे, या मशीनरी हर हफ्ते में तो परचेज नहीं करोगे, 5 साल में 10 साल में मशीनरी आप एक बार परचेज करोगे। वहीं अगर हम बात करें आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपको डेली रूटीन पे एक्सपेंस इनकट करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए रेंट। अब रेंट क्या है? आपको हर महीने देना है, ठीक है ना? तो जो रेंट आपको हर महीने महीने देना है, तो ये आपका क्या हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। और इसका जो ग्रुप होता है, जो टैली में जो ग्रुप होता है, वो किस में आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है ना? और अफेक्ट किस पे करता है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे अफेक्ट करता है, ठीक है ना? और ये चीजें जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना इसके अंदर की, ग्रुप फिक्स एसेट, ग्रुप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब ये आपको भी टैली में दिखेगा। मैंने इसलिए यहाँ पे ये हेडिंग बना रखी है कि आपको जब टैली में दिखाएंगे ना, तो ये इसी ग्रुप में डालना होता है एक्सपेंडिचर। हर एक्सपेंडिचर का ना कोई ग्रुप हेड होता है, और हमें उस ग्रुप हेड के अंदर ही हमने उसको फिगर को डालना होता है, उस एक्सपेंस को डालना होता है। तो इसीलिए मैंने स्पेशली आपके लिए मैंने ग्रुपिंग भी डाल दिया यहाँ पे, कि आपको कोऑर्डिनेट करने में, आपको समझने में तो इजी रहेगा आपको, ठीक है? अब आता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स विद एग्जांपल। अब हमारे पास कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल है हमारे पास। पहले डेफिनेशन है, एक्सपेंसेस दैट रिजल्ट इन एक्विजिशन इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो क्या बता रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रिजल्ट इन एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा यहाँ पे? एक्विजिशन का मतलब, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज करना। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? आपने कोई बड़ी एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट जैसे मशीनरी आपने परचेज कर ली, तो वो क्या हो गया आपके लिए? क्या हो गया? वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना? और इम्प्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है कि पहले से आपके पास प्रोडक्ट था, लेकिन आपने उस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अपडेट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपके पास एक शोरूम था, ठीक है? शोरूम में क्या आप क्या करते थे कि आपके शोरूम में आपका फर्नीचर वाला काम चल रहा था, ठीक है? अब आपने क्या किया, उसी शोरूम में आपने एक फ्लोर और ऐड कर दिया। आपने बोला मेरी मैन्युफैक्चरिंग करने में मुझे इशू आ रहा है, तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मेरी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों सेपरेट हो जाए। तो एक बिल्डिंग स्पेसिफिक मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंसीडर कर लूंगा, और दूसरी जो फ्लोर होगा, मेरा फर्स्ट फ्लोर होगा, उसको मैं क्या करूंगा? एक्सपेंडिचर करने, वो ट्रेडिंग करने के लिए यूज करूंगा, ठीक है ना? तो आपने क्या किया, एक बिल्डिंग के ऊपर दूसरी बिल्डिंग भी ऐड कर दी। तो आपने क्या करा, अपनी ही एक एसेट पे, अपने एक कैपिटल एसेट पे आपने क्या करा, उसके ऊपर एक और एसेट ऐड कर दी। तो क्या हुआ? इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट, आपने फिक्स एसेट को एडिशन कर दिया। और दूसरा एग्जांपल अगर आपको दूं, इससे आसान एग्जांपल सिंपल, जैसे आपके पास कोई मशीनरी थी, और मशीनरी में कोई पार्ट खराब हो गया, कुछ हो गया, आपने उस मशीनरी में एक बड़ा सा पार्ट और एडिशन कर दिया, ठीक है ना? जैसे कटिंग मशीन है आपकी, जो वुड को काटती है, जैसे आप वुड वाला, हमारा मन्नत फर्नीचर में वुड का काम होता है, तो वुड वाले में मान लो जो कटिंग मशीन है उसमें कोई पार्ट खराब होगा, इस पार्ट की वैल्यू 50,000 रुपये है। तो जब हम उस 50,000 की वैल्यू के पार्ट को खरीदेंगे, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा। और वो जो पार्ट होगा मशीन का, वो मशीनरी के ही वैल्यू के अंदर एडिशन हो जाएगा, और वो हमारा क्या बन जाएगा? कैपिटल एसेट ही बन जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना? और टैली ग्रुप में अगर आप देखोगे तो ये हमारा फिक्स एसेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना? हमारी फिक्स है ये एसेट। फिक्स्ड का समझ लो मतलब सिंपल, 1 साल से ऊपर चलेगा, फिक्स्ड हो चुका है वो, ठीक है ना? तो 1 साल से ऊपर चलेगा वो एसेट जो भी होगा, तभी वो फिक्स एसेट बन गया है। एग्जाम्पल हो गया मशीनरी परचेज, जैसे अभी आपको मैं बता ही रहा हूँ, जब से मशीनरी परचेज करी आपने। दूसरा हो गया आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी मैंने बताया कि आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके आपने एक और ऊपर फ्लोर बना दिया, तो वो क्या होगा? आपका इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स एसेट हो गया। तीसरा हो गया कंप्यूटर्स। अब आपकी बिजनेस चल रहा है, अब अकाउंट्स की आप ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग करने के बाद आप मान लो मन्नत फर्नीचर पे जॉब पे गए आप, तो वहाँ पे उन्होंने देखा मेरा काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो उन्होंने वहाँ पे कंप्यूटर्स परचेज करे कि हम अब जो भी हमारा काम होगा वो टैली में होगा, और हमारा कंप्यूटराइज सारा कुछ काम होगा।
तो उन्होंने क्या करा, कंप्यूटर परचेज कर लिया। जो कंप्यूटर परचेज किया, अब कंप्यूटर की वैल्यू एक साल तो होती नहीं है, आप सभी के पास लैपटॉप और कंप्यूटर्स हैं, तो आप सभी को आइडिया है कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 5 5 5 साल तक कंप्यूटर सिस्टम चल जाते हैं, एक साल में तो खराब होते नहीं वो। तो ऑटोमेटिक सी बात है, जो एक साल से ऊपर पहुंच गया वो आपका फिक्स एसेट में कंसिडर हो जाएगा। तो आपका कंप्यूटर पे किस में आएगा, फिक्स एसेट में, ठीक है, और वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट बन जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका फर्नीचर। अब देखो, अब फर्नीचर में एक पॉइंट है, अब फर्नीचर भी दो तरीके, अब फर्नीचर में देखो, अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का ही है, आप क्या है कि जैसे देखो, अब मेरा बिजनेस है, वो मेरा बिजनेस फर्नीचर का ही है, और मैं फर्नीचर के लिए ही काम कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कहलाएगा, वो मेरे लिए क्या कहेगा, वो मेरे लिए स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक जो मेरे लिए क्या कहलाएगा, मेरे लिए वो स्टॉक है, और उस स्टॉक को मैं बेच रहा हूँ, सप्लाई कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए फर्नीचर मेरे लिए क्या बनेगा, फिक्स एसेट, कंप्यूटर नहीं बनेगा मेरे लिए, फिक्स एसेट नहीं बनेगा। लेकिन वही मान लो कोई दूसरी कंपनी है फर्नीचर, जिसमें फर्नीचर का काम नहीं होता है, उसने वो फर्नीचर अपने लिए परचेज किया, जब वो अपने लिए परचेज करेगा, उसके लिए वो फिक्स एसेट और कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसका परचेज स्टॉक नहीं है, वो उसको बेचता नहीं है, वो उसके कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए, कंपनी में जो उसके कस्टमर आते हैं उनको बैठने के लिए वो बना रहा है, ठीक है ना। और हमारा जिसका काम ही फर्नीचर करने का है, उसके लिए तो वो परचेज हो गया ना, उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, उसके लिए वो नॉर्मल एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखना। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तक अगर किसी को कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे विद एग्जांपल्स के साथ। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तो हमें क्लियर हो गया, अब हमारा पॉइंट आता है हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें कैसे करना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जो डेफिनेशन है, डेली ऑपरेशन एक्सपेंसेस दैट डू नॉट क्रिएट एसेट, ऐसे एक्सपेंसेस जो एसेट क्रिएट नहीं करते। एसेट का मतलब ऐसी कोई चीज जो एक साल से ऊपर चलने वाली है, वो ऐसी कोई चीज क्रिएट नहीं करते, वो डेली एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब छोटे मोटे खर्चे कंपनी के। एग्जाम्पल, आपने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा किया, जैसे आपने वाउचर बनाया, जैसे आप कोई भी एक्सपेंस करते हो तो आप वाउचर बनाते हो, तो आपने एक वाउचर बुक परचेज कर ली अपने बिजनेस के लिए, आपने पेन पेंसिल परचेज कर लिया, आपने नोटबुक परचेज कर ली अपने बिजनेस के लिए, ठीक है ना, आपने स्टैम्प पेपर ले लिया या कुछ ऐसा कुछ प्रोडक्ट ले लिया अपने बिजनेस को रन करने के लिए, छोटे मोटे खर्चे हैं, ठीक है। आपने पानी का खर्चा किया, आपने वाटर वारो लगा दिया, उसका खर्चा करो, मैंने वाटर में पानी जो मंगाते हो आप, बिस्लरी का पानी हर दिन मंगा रहे हो, छोटे छोटे खर्चे हो रहे हैं, ये सब क्या है, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो आपको बिजनेस को चलाने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपके एम्प्लॉय जो है उनको, आपको पानी पिलाना है, आपको सारी अकाउंटिंग करनी है, ठीक है ना, तो आप उसके लिए आपको पेन पेंसिल की जरूरत है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। उस तरीके से फिर आपका क्या होगा, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट हो जाएगा। और टैली ग्रुप में, टैली में किस ग्रुप में आएगा ये, टैली ग्रुप में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आएगा, ठीक है, बहु मैं बाद में बताऊंगा कैसे करना है आपको टैली में, ठीक है, जो हम सीखेंगे। अब आते एग्जाम्पल, एग्जाम्पल होगा वेजेस। अब वेजेस मतलब क्या होता है, जो डायरेक्ट, वेजेस कौन से, डायरेक्ट, जो सारे एम्प्लॉय को पे करते हैं, मेरा मतलब क्या होता है, हम उसको कहते हैं भत्ता दे रहे हैं, मतलब सैलरी दे रहे हैं एक तरीके की, जो हमारे एम्प्लॉय वहाँ पे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जो फर्नीचर का सारा काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सबको क्या होता है, उन सबको वेजेस मिलते हैं, दिहाड़ी बोलते हैं हिंदी में, उनको वेजेस मिलते हैं, तो वो सब क्या हमारा एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। दूसरा हो गया रेंट। रेंट मतलब क्या, जो आपको बताइए, रेंट मतलब जो हमारी शॉप हमने ली है उसको हमने रेंट पे करना है, तो वो रेंट हमारा खर्चा हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सैलरी हो गई, सैलरी मतलब क्या हुआ, अब मुझे यहाँ पे कौन बताएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। सर, जो सैलरी होती है वो रेगुलर जो वर्क करता है उनको मिलती है, मंथली मिलती है, और जो वेजेस है वो पर डे पर मिलती है काम करने पर। हाँ बिल्कुल ठीक है, वो भी आपका कहना ठीक है, बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा पर डे पे ही मिलती है, ऐसा नहीं होता, वेजेस कभी कभी हफ्ते में भी मिल जाती है। तो वेज नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे क्या होता है, हमारे ना एक क्लास ऑफ पर्सन होते हैं जो एडमिन वाले लोग होते हैं, जैसे अकाउंट्स वाले हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो रेगुलर फिट काम कर रहे हैं, जो फिक्स है, उन सबको सैलरी मिलती है। और जो जो टेम्परेरी वाले लोग हैं, जैसे जो भाड़े पे काम करते हैं, जो कुछ कुछ टाइम के लिए आते हैं, जैसे आपने बताया एक एक दिन में सैलरी से उनको भाड़ा वो मिलता है, वेजेस मिलता है,
तो जिनका फिक्स नहीं है, ठीक है ना, जिनका डिपेंड करता है उनके काम के ऊपर। लेकिन जो अकाउंट्स वाले लोग हैं, जो एडमिन वाले लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं, जो लीगल एसोसिएट्स हैं वहाँ पे, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, एचआर हैं, उन सबको जो सैलरी मिलती है, उनको जो पैसा मिलता है वो सैलरी होती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका जो एक्सपेंडिचर आता है वो है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर आप सबको मैंने उस दिन बता ही दिया था कि जो भी आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक्सपेंडिचर करते हो वो सारे आपके एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में आ जाते हैं, ठीक है ना। जो भी आप बैनर्स लगा दे रहे हो, अपनी आप सोशल मीडिया में प्रमोट कर रहे हो अपने आप को, जो भी आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हो वो आप सबका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हाउ टू ग्रुप एक्सपेंसेस इन टैली। हाउ टू ग्रुप एक्सपेंसेस इन टैली, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको ये सारे एक्सपेंसेस बनाने पड़ेंगे टैली के अंदर सीखने के पर्पस के लिए। अब एक्सपेंसेस के नाम लिखे हैं और टैली ग्रुप लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे फर्नीचर आपने परचेज करा तो फिक्स एसेट बना दिया। रेंट हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रॉ मटेरियल हो गया परचेज अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। वेजेस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। प्रोफेशनल फीस हो गई आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। तो ये सारे हमने एक एग्जांपल दे रखे हैं आप सभी के सामने कि ये सारे खर्चे आपको इन इन हेड में डालना है, इन इन हेड में आपको ग्रुपिंग करनी है टैली के अंदर। उसके बाद आपका था इनकम हेड इन टैली। तो हाँ, आपका एक्सपेंस भी कवर हो गया, रेवेन्यू वाला भी हो गया आपका कवर, कैपिटल भी हो गया, ठीक है। अब आता आपका इनकम हेड इन टैली। एक बार ये मैं सारी पीपीटी जब खत्म कर दूंगा फिर मैं आपको सारे एक्सपेंडिचर फीड करना सिखाऊंगा टैली के अंदर कि हमें किस तरीके से टैली पे काम करना है, ठीक है। तो एक बार हम पीपीटी कवर अप कर लेते हैं। तो हमारा एक्सपेंस साइड का सारा कुछ खत्म हो गया, ठीक है। अब आते हैं इनकम हेड इन टैली। बाकी एक्सपेंस में अगर किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। एक्सपेंस हमारा खत्म हो चुका है, एक्सपेंस वाला पार्ट। अब हमारे पास बस इनकम हेड रह गया है। और इनकम हेड कंप्लीट करने के बाद फिर हम चलेंगे टैली प्रैक्टिकल की तरफ। रॉ मटेरियल कौन सा एक्सपेंस है? सर रॉ मटेरियल हमारा परचेज है सर। मतलब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आता? डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है सर। ऐसा कोई भी एक्सपेंस, ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो हमारे प्रोडक्ट के अंदर डायरेक्टली इंक्लूड होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे सर, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो जैसे सर आपका हो गया टूथपेस्ट होता है। अब टूथपेस्ट में जो अंदर का जो हमारा जो क्रीम होती है, जो टूथपेस्ट होता है, वो डायरेक्टली है, वो क्या, तो डायरेक्ट खर्च हो रहा है, प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट लग रही है। तो वो जितने भी चीजें हैं चाहे रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो कुछ भी हो, जो डायरेक्टली कॉस्ट में, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में खर्च हो रहा है, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। और ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट प्रोडक्ट पे नहीं लग रहे, एग्जाम्पल है पैकेजिंग है। अब पैकेजिंग में सर क्या है कि हम उसके ऊपर से पैकेजिंग करते हैं, जैसे जो हम कभी ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि स्विगी वालों ने, जोमेटो वालों ने अपने बाहर से रैपर लगा रखे होते हैं, पैकेजिंग कर रखी होती है। तो वो सब क्या, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जो प्रोडक्ट में डायरेक्टली एट्रीब्यूट नहीं हो रहे। ऐसे एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट पे एट्रीब्यूट होते हैं, उस पे लगते हैं, उसको उस कंडीशन में ला देते हैं कि वो बिकने के लायक हो जाता है, वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और रॉ मटेरियल तो सर हमारा बनता ही, मटेरियल ही बनता है हमारा रॉ मटेरियल से, तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। और किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं इनकम हेड इन टैली। अब इनकम हेड इन टैली डेफिनेशन, मनी रिसीव फ्रॉम सेल और सर्विसेज। सेल्स और सर्विसेज। अब कोई भी आपको पैसा रिसीव हो रहा है जो आप सेल कर रहे हो। सेल का मतलब क्या हुआ कि आपका मन्नत फर्नीचर बिजनेस है, हम उसी एग्जांपल लेते हैं। मन्नत फर्नीचर का बिजनेस था, ठीक है। और आपने क्या किया, फर्नीचर वाले आपने चेयर बेची, आपने चेयर बेचा, आपने सोफा बेचा, ठीक है। तो जो आपने गुड्स बेचे, ये सब क्या है, आपके गुड्स है। तो आपने चेयर चेयर सेल कर दी, या आपने क्या बोलते हैं, आपने सोफा सेल कर दिया। जब भी आपने सोफा या चेयर सेल करी तो वो होगा सेल ऑफ गुड्स, वो सेल हो गई आपकी। लेकिन तो जो उससे पैसा आया वो आपकी इनकम हो गई। दूसरा क्या होता है कि सर्विस। अब सर्विस किस केस में होगा वो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए।
अब मेरे को अपने पास अपने घर में कस्टमाइज मुझे अपने अपने घर में कस्टमाइज सोफा बनवाना था, कि मैं चाहता था कि मेरे घर में कस्टमाइज सोफा बन जाए। तो मैंने क्या किया, मन्नत फर्नीचर वाले को बोला कि देखो मेरे पास सारा मटेरियल अवेलेबल है, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे आपसे आपके एम्प्लॉय की सर्विस चाहिए, कि वो मेरे यहाँ आए, मेरे घर पे आए और वो सोफा जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ उस हिसाब से वो सोफे को बनाए और वो चले जाए। सारा प्रोडक्ट मैं खुद अवेलेबल कराऊंगा उनको, उनको सिर्फ अपनी सर्विस देनी है, मतलब उनको अपनी स्किल यूज करनी है वहां पे बनाने के लिए। अब मन्नत फर्नीचर से दो प्लम्बर आए मेरे पास, दो मतलब दो जो फर्नीचर वाला काम करते थे ना, मिस्त्री जो भी है, वो मेरे घर पे आया बनाने के लिए सोफा। अब उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर मेरे घर पे सोफा बना दिया। जब उन्होंने सोफा बना दिया तो उन्होंने देखो मुझे कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेल नहीं करा। उन लोगों ने, मन्नत फर्नीचर ने मुझे कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करा, लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने मुझे एक सर्विस दी, कि मैं उन्होंने मेरे घर पे आकर सोफा बना दिया, उन्होंने मुझे एक सर्विस दी। तो वो जो पैसा मन्नत फर्नीचर को मिलेगा, वो उसको उनको अगेन सर्विस मिलेगा। लेकिन वही अगर वो डायरेक्ट सोफा बेच देते, मुझे सोफा सेल कर देते, तो वो उनका क्या हो जाता, सेल हो जाता, सेल ऑफ गुड्स हो जाता। ठीक है ना। तो दो तरीके की इनकम है, वो चाहे गुड्स को भी बेच के सर्विस इनकम अर्न कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, बाकी वो अपनी सर्विस भी देके इनकम अर्न कर सकते हैं। और आता है हमारा ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है? ऑपरेटिंग इनकम मतलब ये होता है ऐसी इनकम जो बिजनेस की जो मेन काम है, बिजनेस का जो मेन काम है, जैसे मन्नत फर्नीचर है, उसका मेन काम क्या है, कि उसको फर्नीचर सेल करना है, उसको चेयर सेल करनी है, उसको सोफा सेल करना है, वो उसका मेन काम है, ऑपरेटिंग इनकम है। तो ऐसी कोई भी इनकम है जो उसके मेन काम से आ रहा है पैसा, वो सारी क्या हो जाएगी, ऑपरेटिंग इनकम। जैसे सेल हो गया आपका, डायरेक्ट इनकम जैसे आ रहा है ना, सेल ऑफ गुड्स। तो जो भी वो गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, जो आपका मटेरियल है, हमेशा याद रखना, गुड्स का मतलब क्या है, जो स्टॉक होता है हमारा, जो हमारे ऑफिस में स्टॉक पड़ा होता है उसी को हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है। जो भी वो अपनी चेयर को सेल कर रहा है, अपने सोफा को सेल कर रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो उसको इनकम आ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि कोई भी बिजनेस सिर्फ अपने मेन बिजनेस से ही पैसा कमाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, उसके अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है बिजनेस के अंदर। जैसे आपकी इनडायरेक्ट इनकम, एग्जांपल में इंटरेस्ट रिसीव। अब मन्नत फर्नीचर वाले ने क्या किया, बोला कि मेरे अकाउंट में ना काफी पैसा पड़ा हुआ है, एग्जाम्पल मान लो 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है। अब मन्नत फर्नीचर वाला कहता है कि मेरे पास 10 लाख पड़ा हुआ है, और मैंने ये देखा है कि ऑन एन एवरेज मेरे अकाउंट में 5 लाख तो रहते ही रहते हैं, बाकी जो मैं एक्सपेंस करता हूँ वो कभी 9 लाख तक जाता है, 8 लाख तक जाता है, उससे नीचे मेरा अकाउंट कभी गया नहीं। तो मन्नत फर्नीचर वाले के दिमाग में, अब मिस्टर अमन के दिमाग में एक आइडिया आता है, कि जब मुझे पता है कि मेरे अकाउंट में 7-8 लाख से ऊपर पैसा हमेशा रहता है, तो क्यों ना मैं 5 लाख रुपए की एफडी करा दूं। क्यों? क्योंकि मेरे वाले अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलता, और इंटरेस्ट मुझे इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो क्या है, करंट अकाउंट है, और करंट अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो वो दिमाग लगाता है कि मेरे पास हमेशा 5 लाख 7-8 लाख की एवरेज बनी होती है मेरे अकाउंट के अंदर। तो उसको जब ये आइडिया आया तो उसने कहा मैं एक काम करता हूँ, 5 लाख रुपए की एफडी करवा देता हूँ मन्नत फर्नीचर के नाम से। तो उसने क्या किया, अपने बिजनेस के नाम से एक एफडी करवा दी, फिक्स डिपॉजिट करवा दिया। और फिक्स डिपॉजिट पे हमेशा जो इंटरेस्ट मिलता है वो काफी अच्छा मिलता है। तो जब उसको उस एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इनकम जो होगी वो क्या कहलाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों? क्योंकि वो उसका मेन बिजनेस का काम नहीं था, वो उसका बिजनेस से रिलेटेड काम ही नहीं था, उसका तो फर्नीचर बेचने का काम है, लेकिन उसको फिर भी इनकम हो गई, बिना फर्नीचर बेचे भी इनकम हो गई। तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब आपके पास आ रही समरी। समरी में क्या है कि एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो ऑफ मनी, कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू हो। एक्सपेंडिचर का मतलब सिंपल सी बात है, आउटफ्लो ऑफ मनी, आपके पैसे का आउटफ्लो हो रहा है, मतलब आपका पैसा आपके पास से जा रहा है। ठीक है, चाहे वो कैपिटल के लिए हो चाहे वो रेवेन्यू के लिए हो। और कैपिटल रेवेन्यू का मतलब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। उसके बाद आ रहा है आपका नेक्स्ट, करेक्ट ग्रुपिंग इन टैली एंश्योर एक्यूरेट अकाउंटिंग। जब आप टैली में अकाउंटिंग करोगे, जब आप टैली में ग्रुपिंग करोगे, तो टैली में हमको हमेशा आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी आप ग्रुपिंग करोगे, मतलब किस एक्सपेंस को किस हेड में डालना है, तो वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर वो एक्यूरेट होगा तभी आपके पास एक्यूरेट अकाउंटिंग आएगी, अदरवाइज वो अकाउंटिंग रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। कैपिटल, बैलेंस शीट, रेवेन्यू। हाँ, अब कैपिटल का जो इफेक्ट दिखा रहा है वो बैलेंस शीट में आता है, और रेवेन्यू का इफेक्ट जो है पीएनएल अकाउंट में आता है, जो मैंने पहले बताया आपको। एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर कंप्लायंसेस।
तो जो भी मैंने भी आपको बताया कि जो क्लासिफिकेशन, जो ग्रुपिंग आपको करनी है वो एक्यूरेट करनी है, जिससे आपकी कंप्लायंसेस सही हो। अब अब हमारे पास क्या है कि हमारा जो बेसिक जो हमारा आज का था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें टैली वाला काम स्टार्ट करना है कि मैं प्रैक्टिकल टैली में कैसे करना है। तो आप सभी को याद था हमने कल डाटा बनाया था। तो अब हम यस सर। अच्छा, तक किसी को कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ लो, नहीं तो फिर हम चलेंगे टैली के ऊपर। सर यस शीतल जी। सर डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या डिफरेंस है? डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यस सर। हाँ, तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंस वो ऐसे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को आपके गोडाउन तक या आपके शॉप तक पहुंचाने में जो भी खर्चे लग रहे हैं, वो सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होते, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। एग्जाम्पल, आपने एक मटेरियल मान लो कहीं बाहर से मंगाया, ठीक है। जब आप मटेरियल बाहर से मंगाओगे तो एक तो मटेरियल की खुद की कॉस्ट लगेगी, जो आपको आपको अपने सप्लायर को पे करनी। जैसे मन्नत फर्नीचर है, मन्नत फर्नीचर ने एक, जो आपने देखा था परसों वाले एग्जाम्पल में, कि उन्होंने 9 सीटर सोफा बाहर से मंगाया था। तो जो 9 सीटर सोफा उन्होंने बाहर से मंगाया, तो जो जो पेमेंट वो अपने सेलर को कर, जो अपने पेमेंट वो सप्लायर को करेंगे, वो तो डायरेक्ट खर्चा हुआ। और उस सोफे को उनके शॉप तक लाने का जो फ्रेट का जो एक्सपेंस होगा, वो भी उनका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्यों? क्योंकि वो जो खर्चा है उसको गोडाउन तक लाने में, जो आपके बिजनेस तक पहुंचाने में जो भी खर्चे लगते हैं, वो सारे खर्चे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं। और उसके बाद जो एक्सपेंस होंगे, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे। एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में हो गया आपका रेंट एक्सपेंस, आपका सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपेंस। जैसे आपने सिक्योरिटी गार्ड रख रखा शॉप के बाहर, वो क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्यों? सिक्योरिटी गार्ड का कोई रिलेशन ही नहीं है प्रोडक्ट में कोई ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे वो, ठीक है। इसका डायरेक्ट कोई लिंक ना हो प्रोडक्ट से, वो सब आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जैसे अकाउंटेंट की सैलरी, आपके एचआर की सैलरी, आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा, एक्सपेंस, ठीक है। और आपका किस तरीके का खर्चा हो गया, आपकी प्रोफेशनल एक्सपेंस, मान लो आपके मन्नत फर्नीचर ने किसी अकाउंटेंट को हायर किया, किसी प्रोफेशनल सीए को हायर किया, तो जो वो उसको फीस भरेगा वो प्रोफेशनल एक्सपेंस है, वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड तो है ही नहीं, फर्नीचर से रिलेटेड, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो आपके मेन बिजनेस के प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, वो सारे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आई होप शीतल आपकी क्वेरी क्लियर होगी। सर क्लियर हो गए सर, चैट बॉक्स में और क्वेश्चन है। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, एंड सैलरी एंड वेजेस पीआई अकाउंट में आती है। बिल्कुल ठीक है वंदना जी। जो वेजेस एंड सैलरी है, वेजेस जो सैलरी होती वेजेस होती है, वो हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। और बाकी जो आपका नॉर्मल सैलरी होती है, वो आपकी पीएनएल अकाउंट में आती है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ, तो हम, और बाकी और कौन सी क्वेरीज हैं आप लोग की? समरी का लास्ट पॉइंट समझा दो। अच्छा, लास्ट पॉइंट आपका वो है, एक्यूरेट क्लासिफिकेशन इज एसेंशियल फॉर कंप्लाइंसेस। अब इसका मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? ठीक तरीके से, एक्यूरेट, करेक्ट, ठीक तरीके से क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन जो अभी आपको बता रहे थे हम, कि कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट है, कौन सा एक्सपेंस इनडायरेक्ट है, इसका क्लासिफिकेशन करना। कौन सा एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर का है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, इसका क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन अगर सही होगा तभी आपका जो होगा कंप्लाइंसेस जो होगा वो सही से आ पाएगा, जो रिपोर्ट होगी सही से बन पाएगी, बैलेंस शीट सही तरीके से बन पाएगी, पीएल अकाउंट सही से बन पाएगा। तो क्लासिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सपेंस को किस तरीके से आपको सेग्रीगेट करना है, वो है लास्ट पॉइंट। सर, हाँ जी जी, क्या सर जी बताइए। जैसे जो भी चीजें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने बताया है, तो मतलब इसमें जो भी चीजें हमारी प्रोडक्शन से रिलेटेड होंगी वो हमारी डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएंगी, और मतलब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो इनडायरेक्ट में ना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, क्योंकि प्रोडक्शन के सारे एक्सपेंस जो है वो प्रोडक्ट को बनाने में लग रहे हैं ना,
और जो प्रोडक्ट को हाँ डायरेक्ट जी। बनाने में लग रहे हैं वो तो ऑब्वियसली वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएंगे आपके, ठीक है। ओके। तो आप सभी की, आई होप आप सभी की क्वेरीज तो सोल्व हो गई होंगी एक्सपेंस से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे टैली में ग्रुपिंग करना। तो जो हमने कल टैली बनाई थी ना, मैं उसी टैली को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, कि देखो आप सभी ने डाटा बना रखा है टैली के अंदर ही डायरेक्ट, तो आपकी टैली खोलते आपका डाटा खुल जाएगा मन्नत फर्नीचर का। जब आप टैली खोलोगे ना, तो आपका मन्नत फर्नीचर का डाटा ऑटोमेटिक खुल जाएगा। लेकिन मेरा नहीं खुलेगा, क्यों? क्योंकि मेरी लोकेशन डिफरेंट थी कल। तो आप सभी के सामने मैं देखो अब टैली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये कुछ परमिशन पूछता है नेटवर्क से रिलेटेड, आपको अलाउ कर देना है, अदरवाइज तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। अब आपको जैसे मैंने कल ही बताया था, एजुकेशन मोड पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको एज अ लर्निंग पर्पज सॉफ्टवेयर यूज करना है। और ये तो मेरे पास इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाटा बना हुआ है। ये सामने दिख रहा है आपको, एक माइग्रेशन रिक्वायर्ड करके आ रहा है, ये मेरा पुराना डाटा है उसकी वजह से आ रहा है, ठीक है। जब आप ओपन करोगे ना, तो आपका यहाँ पे डाटा दिखने लग जाएगा, जहाँ पे येलो कलर का सिंबल आ रहा है ना, येलो कलर का आपके पास वो दिख रहा है पॉइंट, आपके आपका मन्नत फर्नीचर शो होने लग जाएगा डायरेक्ट यहाँ पे। लेकिन अभी मेरा शो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा लोकेशन कहीं और है। तो जब भी लोकेशन कहीं और होती है, तो मैंने आपको कल सिखाया भी था ये चीज, कि लोकेशन से कैसे आपको डाटा खोलना है। सबसे पहले आपको जाना अपने फोल्डर में, जो आपने फोल्डर बना रखा है। तो आप सभी को याद है मैंने एसआरएस का फोल्डर बना रखा था कल। तो सबसे पहले आप एसआरएस के फोल्डर में आ गए, और मैंने कहाँ पे डाटा बनाया था, क्लास 2 में डाटा बनाया था। तो क्लास 2 में आप एंटर करोगे मन्नत फर्नीचर डाटा, फिर आप एंटर करोगे, और फिर आपको जो इसका पाथ है, जो इसका रास्ता है, जो इसका रूट है, यू हैव टू सिलेक्ट ना। तो आप ऊपर देखोगे ये रहा, आपको यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये कॉपी करेगा, मतलब ये सिलेक्ट कर लेगा इसके रूट को, ठीक है। रूट को सिलेक्ट करने के बाद आपको कंट्रोल 3 से कॉपी करना है, और इसको ऊपर सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की है Alt+D, ठीक है। उससे भी आप कॉपी वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर कंट्रोल 3 से आपको कॉपी करना है, और फिर आपको टैली में जाना है। और टैली में जहाँ पे लिखा है ना सिलेक्ट कंपनी, ऊपर देखो जो सिलेक्ट कंपनी का बार दिख रहा है, वहां पे जाकर आपको कंट्रोल V करके पेस्ट कर देना है। तो मैंने कंट्रोल V किया, और फिर देखो आपको ऐसे लोकेशन आई, फिर आपको एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, देखो मेरे कंपनी का नाम आ गया, मन्नत फर्नीचर, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मन्नत फर्नीचर का मेरी कंपनी का नाम है, मैंने एंटर किया, और यहाँ मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो कल हमने यहाँ तक सीखा था कि कंपनी कैसे बनानी है और उसको कैसे हमें ओपन करना है, ठीक है। तो कल वाली हमारी कंपनी ओपन हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करते हैं लेजर क्रिएट करना। तो देखो आपको सबसे सिंपल दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट है क्रिएट करना। सबसे पहले आपका आ रहा है क्रिएट करने का ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्रिएट करने के लिए अपनी पीपीटी में जाएंगे। सबसे पहले आ रहा है फर्नीचर, रेंट, रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, वेजेस, प्रोफेशनल फीस, ठीक है। और हमारे पास क्या क्या आ रहा है, शुरुआत से देखते हैं हम। हाँ, तो पहला जो हमारा सबसे स्टार्टिंग से आ रहा है वो आ रहा है फिक्स एसेट, ठीक है। अब टैली ग्रुप में हमें फिक्स एसेट के ग्रुप के सारे वो हमें क्रिएट करने लेजर, ठीक है। तो अब हम चलेंगे टैली के अंदर। अब आते हैं क्रिएट के ऊपर, देखो क्या आ रहा है क्रिएट। क्रिएट पे आपको सबको जैसे येलो दिख रहा है, आपको सबको येलो दिख रहा होगा, ठीक है, येलो कलर में। आपको क्रिएट पे एंटर करना है। अब क्रिएट करने पे एंटर करने पे आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग मास्टर। अब अकाउंटिंग मास्टर का मतलब क्या होता है, कि जो भी आप अकाउंटिंग करोगे उसकी जो फाउंडेशन बनेगी, वो सारी आपकी अकाउंटिंग मास्टर से बनेगी, ठीक है ना। जो पहला वाला है वो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, मतलब अकाउंट्स की एंट्री करने से रिलेटेड है। दूसरा जो आप देख रहे होगे ये रहा इन्वेंट्री मास्टर। इन्वेंट्री मास्टर का मतलब क्या हो गया, इन्वेंट्री से रिलेटेड मास्टर, मतलब इन्वेंट्री से रिलेटेड वाले सारे काम, इसमें आप इन्वेंट्री से रिलेटेड सारा काम करोगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग मास्टर में किसी को ग्रुप बनाना है, जैसे फिक्स एसेट का ग्रुप बना हुआ है, तो आप किसी को आपको कोई और ग्रुप बनाना है, मैनुअली आपको खुद कोई ग्रुप क्रिएट करना, तो आप यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आपको लेजर बनाना तो आप लेजर बना सकते हो। लेजर मतलब जो एक्सपेंस का नाम होता है उसको लेजर बोलते हैं, वो हमें लेजर बनाने पड़ेंगे। तीसरा आता है आपका करेंसी।
जरूरी तो नहीं है कि आप सिर्फ इंडिया इंडिया में काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने इंडिया से जर्मनी में मटेरियल भेज दिया, तो जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है? जर्मनी में कौन सी करेंसी चलती है, कौन बताएगा? हेलो। हेलो। यूरो। कौन सी? यूरो, हाँ बिल्कुल सही है, जैसे अंकुश ने बताया यूरो। तो हमारे जर्मनी में यूरो चलता है, तो आपको यहाँ पे करेंसी जगह यूरो बनानी पड़ेगी, तभी आपके टेली में यूरो आएगा, ठीक है। तो जो जो चीजें आपको चाहिए होंगी वो आप सबको यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी। नीचे आ रहा है वाउचर टाइप। अगर आपको वाउचर टाइप कोई क्रिएट करना तो वाउचर टाइप भी क्रिएट कर सकते हो। बाकी डिफॉल्ट बहुत सारे वाउचर इसमें अवेलेबल होते हैं। जैसे तो आपके सारे पॉपुलर, सेल का वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है, परचेज का वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है, पेमेंट का वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है, रिसीट का वाउचर ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। ये सारे वाउचर हमारे पहले से बने हुए हैं। बाकी आप कोई क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी इन्वेंट्री मास्टर मतलब होगा इन्वेंट्री से रिलेटेड, जैसे स्टॉक ग्रुप। आपको कोई स्टॉक का ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। स्टॉक की कोई कैटेगरी बनानी चाहते हो तो आप कैटेगरी बना सकते हो, स्टॉक आइटम बनाना चाहते हो तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हो। और यूनिट का मतलब क्या होता है, मेजर कैसे करोगे। आप जरूरी थोड़ी है कि स्टॉक सारे नंबर में ही होंगे। कोई स्टॉक नंबर में होगा, कोई स्टॉक पीस में होगा, कोई स्टॉक सेट में होगा, ठीक है ना। कोई स्टॉक डजन में होगा, एग्जाम्पल बनाना, ठीक है, बनाना डजन में होता है। तो उस तरीके से जैसे जैसे प्रोडक्ट की मेजरमेंट बनती है ना, वैसे ही आपको यूनिट में बनाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद गोडाउन। गोडाउन का मतलब क्या होता है, अब जरूरी तो नहीं है कि मन्नत फर्नीचर एक जगह काम कर रहा है तो वहीं पर काम करेगा। मान लो उसका दूसरा गोडाउन मान लो उसका जहांगीरपुरी में है, ठीक है। पहला ग्राउंड यहाँ कीर्ति नगर में है, नेक्स्ट सुभाष नगर में है। तो कई सारे गोडाउन है जहाँ से वो सप्लाई करता है, जो उसने ले रखे अपने पास, तो वहाँ पे गोडाउन भी क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपके स्टेचुरी कंप्लाइंसेस है, स्टेचुरी मास्टर्स है आपके पास, जिसमें आपको जीएसटी से रिलेटेड सारा चीज आप कर सकते हो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, जीएसटी की क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और स्टेचुरी डिटेल पे हाँ, यहाँ पे क्या है, स्टेचुरी डिटेल्स आप डिटेल डाल सकते हो, कंपनी का जीएसटी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। जीएसटी नंबर डाल सकते हो अपना, पैन नंबर डाल सकते हो, सिन नंबर डाल सकते हो। सिन नंबर मतलब पता है किसी को क्या होता है? कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, कंपनी का यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। लेकिन अभी हमारा क्या काम है, हमें लेजर क्रिएट करना है। तो मैं सबसे पहले लेजर में जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले बैक बैक कैसे करते हैं, एस्केप से, जो आपकी कीबोर्ड की लेफ्ट में टॉप पे बटन है। अब हमें क्या करना है, क्रिएट करना। तो मैंने सबसे पहले क्रिएट पे एंटर किया, यहाँ से मैंने लेजर पे क्रिएट किया, और लेजर में इस तरीके का खुल गया एक इंटरफेस। और हमें क्या बनाना था, फर्नीचर। अपनी पीपीटी ओपन कर लेते हैं। हमें बनाना था मशीनरी, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। तो आपको सिंपल यहाँ पे नाम क्या लिखना है, मशीनरी नाम लिखना है, ठीक है। मशीनरी के बाद आपको पूछ रहा है किसके अंडर मशीनरी आएगी। मशीनरी किसके अंडर आएगी बताओ? कैपिटल। फिक्स्ड एसेट। हाँ, कैपिटल एसेट में तो आएगी, लेकिन कैपिटल एसेट के अंदर भी किस में आएगी, फिक्स फिक्स्ड एसेट में। एसेट। फिक्स्ड हाँ देखो, मैंने एसेट। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, फिक्स एसेट के अंदर आएगी, ठीक है। कैपिटल कैपिटल तो एक ब्रॉड टर्म है। अब आ गया, किस में आ गया ये? और हाँ, कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है ये, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, याद रखना हमेशा। कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग होता है, कैपिटल अकाउंट अलग होता है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे फिक्स एसेट बनाना है। देखो फिक्स एसेट पहले से ग्रुप बना हुआ है, तो आपको सिंपल फिक्स एसेट पे एंटर करना है। अब जब भी आप लेजर बनाओगे, इसके बाद आपके पास डिटेलें पूछेगा ये। सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आपको एसएससी की वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करनी है। स्टैच्यूटरी डिटेल, स्टैच्यूटरी डिटेल का मतलब होता है कि इसमें जीएसटी अप्लीकेबल है कि नहीं, वो डिटेल डालनी पड़ती है। अगर आप इस पे जीएसटी इंक्लूड अप्लीकेबल कर दोगे, तो जब भी आपको लेजर, जब आप एंट्री करोगे मशीनरी की, तो ऑटोमेटिक जीएसटी कैलकुलेट कर देगा वो। क्योंकि आप देखो रेट भी पूछता है, आप नीचे देखोगे ना, यहाँ पे जीएसटी का रेट पूछ रहा है ये, जीएसटी रेट। जैसे आपने मान लो यहाँ पे 18% डाल दिया, तो जब आप एंट्री करोगे तो 18% वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ऑटोमेटिक, ठीक है। तो वो होता है उसकी जीएसटी कंप्लायंस। जैसे मैंने जीएसटी पे इनेबल किया, तो अब ये पूछ रहा है जीएसटी में कि गुड्स है या गुड्स एंड सर्विसेज है या सर्विस है। तो बताओ मशीनरी क्या है, आप सभी में से कोई बताओ मशीनरी क्या है? गुड्स है। गुड्स। गुड्स गुड्स है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाइफिकेट करना है, ठीक है। फिर आपको बोल रहा है मेथड ऑफ कैलकुलेशन, बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन वैल्यू। आपको हमेशा बेस्ड ऑन क्वांटिटी और बेस्ड ऑन वैल्यू पे, आपको वैल्यू पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद मशीनरी एंटर कर दोगे आप, फिर एंटर एंटर कर दोगे।
ऐसे करते करते जो डिटेल आप मशीनरी के लिए रेलिवेंट नहीं है आपको उसको फीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आप एंटर करोगे आपकी मशीनरी तैयार हो चुकी है, वो मशीनरी का लेजर आपका क्रिएट हो चुका टैली में। बस आपको ना ये ग्रुपिंग जो है ना आपकी ये वाली जो इसमें अंडर बना हुआ है, इस अंडर को आपको हमेशा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अंडर गलत हो जाएगा तो क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा, और क्लासिफिकेशन गलत हो जाएगा तो कंप्लायंसेस गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको ये जरूर याद रखना है। दूसरा आपका क्या आ रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आपने कराया तो आपका बिल्डिंग वाला खर्चा हो गया। अब बिल्डिंग में किस में आएगा, फिक्स एसेट में आएगा, तो आपको डालना है बिल्डिंग। बिल्डिंग डाल के आप यहाँ पे क्या डालोगे, फिर से फिक्स एसेट, फिर नोट डाल दो, जीएसटी नोट अप्लीकेबल, ठीक है। फिर आपको एड्रेस वड्रेस डालना हो आप डाल सकते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बिल्डिंग का जो भी एड्रेस है डाल सकते हो, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता। फिर आपको एंटर एंटर करके आपको सेव कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका तीसरा लेजर है कंप्यूटर। फिर आपको कंप्यूटर बनाना है यहाँ पे, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भी आपका फिक्स एसेट में है। अब यहाँ पे भी आप अप्लीकेबल जीएसटी कर सकते हो। फिर आपको उसमें डालना होगा कि HSN और सैक नंबर होता है। HSN मतलब क्या होता है, HSN नंबर का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर नंबर, हार्मोनाइज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर नंबर होता है। इसमें क्या होता है, यूनिक नंबर होता है, हर चीज का एक यूनिक नंबर होता है अकाउंट्स के अंदर, जिसके जिससे उसको डिनोट करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं, तो वो HSN नंबर डालना पड़ता है। अगर आपके पास है तो आपको स्पेसिफिक डिटेल यहाँ करके, जैसे अभी मैं यहाँ पे एक सैंपल के लिए डाल रहा हूँ, ठीक है, जैसे 9304 होता है। तो आप जो जो भी HSN नंबर हो आप सर्च मार के डाल सकते हो गूगल से। बाकी डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट का नाम आपको क्या डालना है, तो मैं प्रोडक्ट के नाम डिस्क्रिप्शन में पूरा डालता हूँ। आपने देखा होगा बिल्स के ऊपर लिखा होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का पूरा नाम क्या है, उस तरीके से डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डिटेल में क्या नाम है उसका, आप वो डाल सकते हो। डिटेल में आपने क्या नाम पढ़ा था, आपने डाला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो आप यहाँ पे फुल नाम डाल सकते हो अपना, ठीक है। उसके बाद आप जीएसटी रेट के बारे में बता सकते हो, यहाँ पे कितना रेट लगेगा, तो स्पेसिफिक डिटेल यहाँ पे कर दो। अब देखो यहाँ पे चार चीजें पूछ रहा है आपसे, आप सभी के सामने चार ऑप्शन खुल गए। पहला एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट का मतलब क्या है कि इस पे एग्जाम्प्ट है वो, मतलब जीएसटी उस पर अप्लीकेबल ही नहीं होगा। रिलेटेड का मतलब हो गया जीएसटी अप्लीकेबल है बट 0% है, जीएसटी मतलब जीरो। जीएसटी का आपको पता होगा, जीएसटी के बहुत सारे रेट होते हैं, ठीक है ना, जैसे 18%, 40% भी रेट हो गया अब तो वो जो रेट होता है वहां पे आपको रेट डिसाइड करना पड़ता है। जैसे 18% तो आप यहाँ पे 18% डाल सकते हो, नील रेट हो तो नील रेट डाल सकते हो। जैसे अब यहाँ पे टैक्सेबल है, टैक्सेबल का मतलब होता है जीएसटी अप्लीकेबल है इसके ऊपर, टैक्सेबल करते अप्लीकेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको रेट डालना होगा, जैसे आप फर्नीचर पे कंप्यूटर पे 18% जीएसटी लगता है, तो आप आपको 18% सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ये कौन सा गुड्स है, गुड्स है, सर्विसेज है, या फिर कैपिटल गुड्स है, तो ये क्या है हमारा, कौन बताएगा ये क्या है हमारा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड। वेरी गुड, ये हमारा कैपिटल गुड्स है, वेरी गुड। बस कैपिटल गुड्स आपको फीड करना है, उसके बाद आपको कंट्रोल ए करके सेव करना है, एंटर एंटर करके, ठीक है। आपका कंप्यूटर भी बन गया। अब आता है, आगे तो रहने दो, फर्नीचर बाद में बनाएंगे। मेरा पीपीटी कहाँ गया। उसके बाद ये एक्सपेंसेस बनाने हैं। ये सारे एक्सपेंस आप खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। बाकी मैं आपके लिए एक दो एक्सपेंस बना देता हूँ, लेकिन ये आपको होमवर्क मिलेगा, आप सभी को ये एक्सपेंस खुद बनाने होंगे अपने पास, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या आ रहा है, वेजेस आ रहा है, सैलरी आ रहा है, रेंट आ रहा है, एडवर्टाइजिंग आ रहा है। तो ये सारा आपको एक ही तरीके से बनाना, तो मैं आपके लिए एक बना देता हूँ, वेजेस एक्सपेंस, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे लिखोगे आप वेजेस, ठीक है। अब वेजेस किस में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। वेरी गुड। अब डायरेक्ट एक्सपेंस आप देखो, जब डायरेक्ट लिखोगे तो सारे अपने आप ग्रुप दिख जाएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में आप एंटर करोगे, फिर आपको फिर वही आपको अप्लीकेबल है तो अप्लीकेबल करना है, नहीं है तो नहीं। जिस वेजेस पे कोई जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है तो आपको नोट अप्लीकेबल कर देना, ठीक है। बाकी फिर एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर देना। आपका वेजेस भी बन गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, आपका रेंट है, रेंट बना दो। अब रेंट किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वेरी गुड। तो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस क्लिक किया, क्या जीएसटी अप्लीकेबल है उसके ऊपर, वो मतलब जीएसटी अगर आपका जो जिससे आपने रेंट जिसको आप रेंट दे रहे हो अगर वो जीएसटी लगाते हो तो आप जीएसटी अप्लीकेबल कर देना, अदरवाइज आप जीएसटी नोट अप्लीकेबल कर देना।
उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, ये स्टूडेंट के बाद सैलरी। सैलरी किस में आएगा? इनडायरेक्ट। Indirect बिल्कुल बिल्कुल, तो ये आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस बना देना, ठीक है। मैं सेव करते जा रहा हूँ। उसके बाद आपका आ गया एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। एडवर्टाइजिंग, ठीक है। एडवर्टाइजिंग किस में आएगा? इनडायरेक्ट है सर ये भी। तो आपको जो बेसिक 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 जो ग्रुपिंग थी ना, वो तो हमने कर दिया आज, ठीक है। तो आपने बेसिक बेसिक तो आपने सीख लिया आज की बेसिक कैसे आपको लेजर क्रिएट करने हैं, ठीक है। और बाकी इस लेजर का हमको यूटिलाइज एंट्री कैसे करनी है वो मैं आपको कल बताऊंगा। बाकी अगर आपको चेक करना है कि आपके कितने सारे लेजर क्रिएट हो चुके हैं, तो आपको टैली में कैसे देखना है मैं आपको वो बता देता हूँ। एस्केप एस्केप करके पहले बैक हो जाओ आप, ठीक है। उसके बाद आज आपको ये चेक करना है कि हमने जितने लेजर क्रिएट किए हैं आज, क्या वो लेजर बने दिख रहे हैं हमें कि नहीं। सबसे पहले आपको करना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट सबसे लास्ट में देखोगे, थर्ड लास्ट ऑप्शन है, तो आप एंटर करोगे। उसके बाद आपको क्या देखना, अकाउंट्स बुक देखनी है, क्योंकि हम अकाउंट्स वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो आपको अकाउंट्स बुक्स पे क्लिक करना है। देखो आप सबके सामने अकाउंट बुक्स लिखा हुआ है, अकाउंट्स पे एंटर करोगे। उसके बाद आपको क्या देखना है, कौन बताएगा यहाँ पे क्या देखना है? हमें लेजर, जो हम बना रहे थे लेजर। अब देखो लेजर जैसे मैंने ओपन किया, देखो आपके सामने दिख गए सारे लेजर जो हमने बना रखे थे। एडवर्टाइजिंग, बिल्डिंग। हाँ एक बात याद रखना, टैली में हमेशा दो लेजर हमेशा पहले से बने होते हैं। एक होता है आपका कैश, और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे देखो आप, ये आपका कैश और आपका P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हम खुद नहीं बनाते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटेड बना होता है टैली में, ठीक है। बाकी देखो हमने बनाया है, एडवर्टाइजिंग हमने खुद बनाया है, बिल्डिंग हमने खुद बनाया है, कंप्यूटर हमने खुद बनाया, मशीनरी हमने खुद बनाई है, रेंट हमने खुद बनाया है, सैलरी हमने खुद बनाई है, वेजेस हमने खुद बनाई है, ठीक है। और बाकी इस पे जो वर्किंग करने वाले हम लोग, जो एक डाटा के साथ वर्किंग करने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। अभी क्या था, बेसिक आपको लेजर बनाना सिखाना था, और एक्सपेंस के बारे में बताना था कि एक्सपेंस कितने तरीके के होते हैं और उसको सेग्रीगेट कैसे करना है आप लोगों को। तो आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा आज। बाकी फिर भी अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। सर लेजर देखने शॉर्टकट की क्या होता है? रेजिडेंस क्या? हेलो, लेजर देखने शॉर्टकट की क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। सर वो लेजर, पूछ रहे लेजर देखने के लिए कट शॉर्टकट की क्या होती है? अच्छा लेजर देखने के लिए DAL। DAL, जैसे एस्केप करोगे ना, अगर आप गेटवे ऑफ टेली पे आ जाओगे तो DAL। देखो यहाँ पे ना सबके, देखो सब सारी चीजों के आगे शॉर्टकट बना हुआ है। ये जो डार्क में जो ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये शॉर्टकट के लिए ही है। तो डिस्प्ले में देखो आपको डी को डार्क कर रखा है, तो आपको डी प्रेस कर दो, डी। अब अकाउंट बुक चेक करना तो A, और लेजर देखना तो L, ठीक है। तो आपने देख लिया, तो आप फिर एस्केप करके बैक कर दिया आपने, सीधा आपको करना DAL, तो आपका सीधा खुल गया, ये आपका शॉर्टकट की बन गया। तो आप खुद बना सकते हो जितने शॉर्टकट की बनाना चाहते हो। बाकी मैं, हाँ, आपको दो, कल या परसों वाली क्लास में जो होगी, मैं आपको उसमें शॉर्टकट कीज भी अवॉइड, वो सारे एक लिस्ट बना कर दूंगा, जो भी शॉर्टकट होंगे ना सारी कीज, उसका मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे फिर आपको इजी रहेगा ट्रैक करने में। एनीथिंग एल्स? सर यस। सर ये कैसे पता लगेगा कि जीएसटी किस कैपिटल या फिर किस एक्सपेंडिचर पे एप्लीकेबल है या नहीं? क्योंकि जो पार्टी आपको बिल देगी ना, पार्टी तो जीएसटी लगा के देगी आपको बिल। अगर पार्टी ने जीएसटी बिल लगा के दिया तो वो जीएसटी उस पर अप्लीकेबल हो गया आपके टैली के अंदर, और अगर नहीं लगाया तो फिर अब नहीं होगा, सिंपल। और सर आप मेरा क्योंकि एक और आप क्वेश्चन। बोलो यस बोलो। सर। सर प्लीज आप। नहीं नहीं, बोलो, कोई बात नहीं। सर ये जो अभी आप शॉर्टकट की का बता रहे थे, वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली, अगर कंट्रोल प्लस C प्लस मतलब कंट्रोल प्लस C अगर प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, या फिर क्रिएट नहीं, करना पड़ेगा?
नहीं नहीं, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये टैली का अपना खुद का सॉफ्टवेयर है। जैसे आप एक्सेल में कॉपी पेस्ट करते हो ना, तो टैली में भी ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है। तो आप सीधा कंट्रोल सी करोगे तो कॉपी हो जाएगा, कंट्रोल वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा। पहले ये अलग हुआ करता था। जो पहले की टैली हुआ करती थी उसमें कंट्रोल नहीं चलता था, उसमें ओल्ट सी चलता था। लेकिन अब जो टैली प्राइम का जो नया वर्जन आ गया ना, उसने बहुत इजी कर दिया है। आप सीधा कंट्रोल सी, जैसे आप कॉपी करते हो ना नॉर्मली कंप्यूटर में, तो आप यहाँ पर भी कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हो और कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कुछ मैनुअली कुछ नहीं बनाना, ये पहले से बना हुआ है। मेरा ओके फेस सर। मान लो अगर छोटा हो क्या चीज? तो कैसे करूंगा मैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्लियर आपकी। सर हेलो। जैसे कि आप ये आपने बताया कि अगर पार्टी चाहे जीएसटी देना तो जीएसटी लगेगा। अगर जैसे सर पार्टी, वो पार्टी मैं हूँ, अगर मैं जीएसटी देना चाहूँ तो जीएसटी लगेगी, वरना नहीं देना चाहूंगा तो नहीं लगेगी। देना चाहूँ नहीं लगेगी मतलब? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, अगर आपके पास आप एक मशीन, आप मान लो एग्जांपल के लिए आपने फर्नीचर परचेज करा, ठीक है। तो आपने अगर एक बड़े सप्लायर से परचेज करा फर्नीचर, जिसके पास जीएसटी नंबर भी था, ठीक है। अब सबके पास जीएसटी नंबर तो नहीं होता। जीएसटी नंबर के लिए लिमिट होती है कि 40 लाख से ऊपर टर्नओवर होनी चाहिए गुड्स के केस में। तो जिसकी टर्नओवर 40 लाख से ऊपर होगी वही जीएसटी में काम करेगा। तो जो जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वही जीएसटी लगा पाएगा। अब मान लो आप किसी छोटे वेंडर के पास गए, जो बिल्कुल लोकल काम करता है, वो मान लो वो एक तरीके का ठेकेदार बैठा हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है, वो छोटे लेवल पे काम करता है, उसके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, ठीक है। तो जो वो बिल, हाँ, ठीक है, तो जिसके पास जीएसटी नंबर होगा वही जीएसटी वाला बिल दे पाएगा। जिसके पास जीएसटी नंबर होगा ही नहीं, वो जीएसटी बिल कैसे दे पाएगा आपको, ठीक है। तो डिपेंड करता है सप्लायर कौन है, बेचने वाला, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री बिल पे बुक करनी है, ठीक है। और ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। जीएसटी डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट है? सर हमारी जीएसटी तो सर हमारी लाइबिलिटी है, ड्यूटी से टैक्सेस में आता है सर ये हमारे। जीएसटी के लिए ना सर अलग से हमारा टैली एक लेजर बना के देता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस करके, कि हमारे टैक्सेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, और जीएसटी इज द पार्ट ऑफ टैक्स। और जीएसटी हम सबके लिए एक लाइबिलिटी है सर, हमें सरकार को पे करना होता है। तो ये हमारे करंट लाइबिलिटी में होता है लेजर। ऑटोमेटिक है सर ये टैली के अंदर। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ डिस्प्ले में। जैसे आप सर क्रिएट करेंगे ना, आप क्रिएट में गए, फिर आप जाएंगे लेजर क्रिएट करने में, और आप यहाँ पे करेंगे सीजीएसटी। एग्जाम्पल सर आपने सीजीएसटी लिखा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। फिर आप एंटर करेंगे, तो जब अंडर आपको डालना होगा, आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस डालना होगा, क्योंकि ये जीएसटी जो है वो टैक्स एक तरीके का। जब आप ड्यूटी सेक्टर में जाएंगे तो वहां पूछेगा ये आपसे, क्या ये जीएसटी है या अदर है। फिर आपको वहां पे जीएसटी सेलेक्ट करेंगे ना सर, वो ऑटोमेटिक पूछेगा ये सीजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी, एसजीएसटी है, या फिर सेस है। फिर आप सिंपल यहाँ पे सीजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बना रहे हैं हम। सीजीएसटी आप सेलेक्ट करेंगे, बस फिर आपको उस पर सेव करके आपको लेजर बना देना है। तो सीजीएसटी, और आप देखेंगे यहाँ पे सर, आप देख रहे होंगे करंट लाइबिलिटी, आप देख रहे होंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के नीचे लिखा है करंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे लिए लाइबिलिटी है सर ये। कि जब हम कस्टमर से ये रियलाइज करते हैं जीएसटी, तो वो रेवेन्यू नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं सर, जीएसटी कभी भी रेवेन्यू नहीं होता सर। अगर हम कस्टमर से जीएसटी रिसीव कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेट हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी करना होता है। जैसे सर मैंने किसी को बिलिंग करी, और बिल जब मैंने किसी को इशू करा, 10,000 रुपए का फर्नीचर था, 18% जीएसटी, विच इज आप अराउंड आराम से 1,800। आ रहा। तो सर जब 1,800 रुपए का जीएसटी मैं पार्टी से कलेक्ट करूंगा, तो उसको मुझे सेल में जब मैं कंसिडर करूंगा जीएसटी रिटर्न बनाते हुए, तो वो 1,800 रुपये मेरे को जीएसटी सरकार को जमा कराना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में ही। तो सर वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन जाएगी। हेलो। 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 यस यस, यू आर ऑडिबल। यस सर, कैन आई आस्क यू वन क्वेश्चन? या श्योर। यस सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो आपने लिखे थे, तो उसके आप मुझे थोड़े से एग्जांपल्स बता सकते हैं? एग्जाम्पल? जैसे इनडायरेक्ट आपने एक्सपेंसेस। वेजेस लिखे। यस यस, जैसे वेजेस लिखे थे, सैलरी लिखी थी, एंड
एडवर्टाइजमेंट लिखे थे, तो इसके हम्म। अलावा भी मतलब ऐसे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के आप मुझे एग्जांपल बता सकते हैं थोड़े? आप बहुत बहुत सारे एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। आपके प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपको मैं बार बार बता रहा था, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो जैसे एक्सपेंस है वो। स्टेशनरी एक्सपेंस, जैसे अगर हम कहें जैसे जैसे ट्यूशन फीस वगैरह, तो मतलब ये भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, ट्यूशन फीस तो एक अलग चीज हो गया। अब मन्नत फर्नीचर में ट्यूशन फीस का कौन सा एक्सपेंस आएगा जी जी नॉर्मली? हाँ। और ट्यूशन फीस वैसे भी आपका ये पर्सनल है ना, आपके बिजनेस में थोड़ी ट्यूशन फी आप एक्सपेंस डालोगे। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ये आपका पर्सनल नेचर का एक्सपेंस हो गया, तो ये बिजनेस में कंसिडर ही नहीं होगा। यस। अच्छा, ठीक है सर। और बाकी इनडायरेक्ट में तो बहुत सारे खर्चे आपको मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आपके रिपेयर मेंटेनेंस के एक्सपेंस, आपने कोई रिपेयर हम्म मेंटेनेंस कराया उसके एक्सपेंस, हाउस कीपिंग के एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंस, शॉर्ट एंड जी। एक्सेस कोई छोटे मोटे अमाउंट डेबिट क्रेडिट हो गए उसके एक्सपेंस, बैंक चार्जेस के एक्सपेंस, और हम्म। आपके पोस्टेज एंड कोरियर के एक्सपेंस। ठीक है, ऐसे बहुत अच्छा। सारे तमाम एक्सपेंस है, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। अच्छा ठीक है सर, ठीक। हाँ जी। और बस यही पूछना था सर, थैंक यू। ओके, वेलकम। इज देयर एनी और क्वेश्चन या फिर जी, ये सीजीएसटी का मतलब ये जीएसटी जो मतलब ये आप बता रहे हैं सीजीएसटी का। देखो, जीएसटी तो एक ब्रॉड टॉपिक है हम्म जो हम्म आपको हम्म, आने वाले टाइम पे एक मैम है वो पढ़ाएंगी, संजू मैम करके, वो पढ़ाएंगे आपको जीएसटी का लेक्चर। तो वो आपको ज्यादा हम्म, डेप्थ में बताएंगे। ठीक है, वैसे मैंने जीएसटी एक तरीके का आपका क्या है, एक लाइबिलिटी है, जो मैंने भी प्रदीप सर ने पूछा था तो उनको मैंने, पत्ती के मल्होत्रा सर ने पूछा तो मैंने उनको बता दिया था। तो अभी के जैसे लिए एज ऑफ एच। नाउ, हाँ एज ऑफ नाउ आप ही सोच के चलो कि जीएसटी आपका वो लेक्चर मैम लेंगी और आपको ज्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करेंगी। ये क्लास ठीक। आपकी होने वाली है फ्यूचर में, और वो बहुत ही अच्छी क्लास है जीएसटी की तो। अच्छा ठीक है सर। सर आपकी वीडियो से बहुत हेल्प मिली, बहुत थैंक यू अच्छा, आपका। ओके ओके, वेलकम। और किसी की कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम वाइंड अप करेंगे आज की क्लास ना। और हाँ, प्रैक्टिस आप करते रहो, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और बाकी ना, मैं अब नेक्स्ट क्लासेस में आपको कुछ वैसी भी चीजें बताऊंगा, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्टडीज की रियल लाइफ में आपको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, अकाउंट्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको फोकस करनी है, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी फ्यूचर में, कि एक अकाउंटेंट को क्या काम करना होता है, कैसे ग्रुपिंग करनी पड़ती है। ठीक है। और यस। अपार्ट फ्रॉम जो बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी, तो जरूर आप बने रहना हमारे साथ। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो आप ये लेक्चर ना, जैसे हमारी स्ट्रेंथ अभी कम हो रही धीरे धीरे करके, तो हम चाहते हैं हम्म और जरूरत जो जिनको जरूरत है उनके पास और ही वीडियोस पहुंचे हमारी शिक्षण सोसाइटी की। ठीक है, हम्म। तो आप सब इसको प्रमोट करो, अपने साथ साथ 10 लोगों को, कम से कम 10 लोगों को शेयर करो, कि पाँच पाँच छः छः लोग और इंक्रीज हो जाए। ठीक है ना, तो इससे हमारी सोसाइटी भी बढ़ेगी और आप लोग का साथ का बेनिफिट भी होगा, है ना। श्योर सर, मैं जरूर करूँगा। ओ, सर एक ओके। क्वेश्चन। हाँ जी, पूछिए। सर सैलरी जो होती है वो लाइबिलिटी होनी चाहिए ना? सैलरी लाइबिलिटी होनी चाहिए? सैलरी नहीं, सैलरी तो हमारा एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। सैलरी तो इनडायरेक्ट हमारा, एक्सपेंस वाला। वो तो हमारा एक्सपेंस है हमारा, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, सैलरी या इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यस तो सर। वो आपका खर्च, वो तो आपका एक्सपेंस हो गया ना, तो लाइबिलिटी हम्म। कहाँ से बनी? वो अलग चीज हो जाती लाइबिलिटी है। की बात होगी फिर। हम्म, वो हमारा एक्सपेंस हो गया सीधा। वो तो डायरेक्ट हमारा एक्सपेंस होगा जो होगा। यस यस। हाँ, अगर आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, जैसे क्या होता है कि कई बार ना हम सैलरी पे एम्प्लॉय को रखते नहीं है। जैसे एग्जांपल आप सबको लाइव देता हूँ, आजकल जो हमारे मार्केट में चल रहा है, गवर्नमेंट की जॉब आप देख रहे होगे, गवर्नमेंट की जो जॉब है वो खत्म हो रही है। अब धीरे धीरे कॉन्ट्रेक्चुअल वाला काम स्टार्ट हो रहा है। और जब भी कॉन्ट्रेक्चुअल वाला काम स्टार्ट होता है बिजनेस के अंदर, एग्जांपल से गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट के जो सर्विस पीएसयूज हैं, वो क्या करते हैं, अब डायरेक्ट एम्प्लॉय को हायर नहीं कर रहे, वो कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को ले रहे हैं और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को पकड़ रहे हैं और मेन पावर ले रहे हैं। मतलब एग्जांपल, उनको 10 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो किसी कंपनी को पकड़ रहे हैं, उनसे 10 लोगों को हायर कर रहे हैं। तो वहां पर जो वो उनको सैलरी दे रहे हैं वो कंपनी को दे रहे हैं, वो इम्प्लॉयज को नहीं दे रहे हैं। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे वो लाइबिलिटी बन जाएगी कॉन्ट्रैक्ट को पे करने वाली। ठीक है ना, वो एक अलग चीज है, वो हम्म। आपको बाद में पता लगेगा। और कुछ, या फिर हम बाइंड अप करें? क्वेश्चंस तो काफी भरे हुए हैं, पता लग रहा हाँ है आप जी। लोगों को। नहीं नहीं, अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना बहुत अच्छी एक स्किल है, और मुझे भी अच्छा लगता है बताने में। तो अगर आपका कुछ है तो बताइए, फिर नहीं तो हम आगे फिर वाइंड अप करेंगे आज की क्लास। यस सर। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। यस, अभिषेक जी आप कर सकते हैं प्रोसेस।
तो थैंक यू विकी गौतम जी फॉर द सो मच इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल क्लास। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि हम साथ में फोटो ले सकें फॉर रिकॉर्ड पर्पस। तो थैंक यू। इन द मीनवाइल आप सभी अपनी अटेंडेंस ड्रॉप कर सकते हैं चैट बॉक्स में। अटेंडेंस के लिए अपने नाम लिखें और अपने फोन नंबर्स के लास्ट के 3 डिजिट डाल दीजिए। सो थैंक यू एवरीवन। और नाउ वुड लाइक टू move towards our president, Ms. Jyotika Kalra ma'am, who is Supreme Court lawyer and former member of NHRC. Over to you, ma'am. Yes, thank you, Abhishek, and thank you, Vicky, for taking such a wonderful class. When I was listening to your class, तो मेरे को ये लग रहा था कि तुम बहुत ज्यादा you are very much clear with the concepts. और जैसे बोलते हैं ना कि टीचिंग इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग, मतलब जो पढ़ाना है वो भी अपने आप में एक सीखने की प्रक्रिया है। और जिस तरह से आप पढ़ा रहे थे, एक एक पॉइंट को आप क्लियर कर रहे थे, क्लैरिफाई कर रहे थे, वो मैसेजिंग बार बार यही जा रही थी कि जैसे आपको इस विषय को लेकर बहुत ज्यादा क्लियर हैं आपके फंडामेंटल्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहती हूँ कि किसी के भी किसी सब्जेक्ट के फंडामेंटल्स बहुत आसानी से क्लियर नहीं होते। इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप सबके पास अपॉर्चुनिटी है। एंड जब मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये कोई अकाउंट्स और बिजनेस की क्लास मीन्स ओनली मेंट फॉर बिजनेसमैन और ओनली मेंट फॉर अकाउंटेंट्स है, ऐसा कभी भी नहीं होता। आप सबको अकाउंट्स और बिजनेस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपकी। हम इसमें ये भी क्लास लेने वाले हैं कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंस, हाउ टू मैनेज योर इनकम। तो आप सब ये मान के, आज आप क्लास में पढ़ते हो या कॉलेज में पढ़ते हो, पर आने वाले समय में आप काम करोगे, आप पैसा कमाओगे, आपके घर में आपके पिताजी पैसा कमाते हैं, माँ पैसा कमाती है, बहन भाई पैसा कमाते हैं, तो सभी को इसलिए वो पैसे के साथ आपका आज इनडायरेक्ट कनेक्शन है, कल को डायरेक्ट कनेक्शन होगा। और अपनी पढ़ाई में तो आपके काम आएगी आएगी, आपकी जनरल साइंस की, जनरल नॉलेज की जो भी एग्जामिनेशन होता है उन सब में काम आएगी। तो वीडियो को आप देखें, जैसे विक्की सर ने भी बताया, उसको ध्यान से देखें, कॉपी पेंसिल लेके बैठे, उसको नोट डाउन करें, प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छा लगा कि इतने सब बच्चों ने रिस्पॉन्ड किया और वो टेली का जो कंपनी फॉर्मेशन था उसको शेयर किया। विक्की सर ने बोल दिया बिगनिंग में कि वो कल रिजल्ट अनाउंस करेंगे, तो हम सब इंतजार करते हैं कल का। और जो कल की क्लास होनी है विक्की सर लेंगे वो है टेली रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर विद असाइनमेंट। कि सिर्फ आज आपने एक्सपेंडिचर के बारे में सीखा, तो कल इनकम और एक्सपेंडिचर को असाइनमेंट के साथ कैसे किया जाता है वो कल की क्लास होगी। जैसा विक्की सर ने बोला, आप कोशिश कीजिए आपके जानकार जो इस क्लास को शुरू में ज्वाइन करे थे उनसे बात करके उनको बताइए और कहिए कि वो भी क्लास को ज्वाइन करे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अब 10:15 बज गए, विक्की सर की क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है, आपके सवाल बहुत सारे होते हैं, बहुत खुशी भी होती है। फिर भी 50 लोग अभी कॉल पर हैं, सो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हम सब इसी तरह नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को और ज्ञान को सेलिब्रेट करते रहें, बांटते रहें और एक दूसरे से सीख कर हम सशक्त होते रहें, हम ताकतवर बनते रहें, हमारा दिमाग तेज होता रहे, बुद्धिमान होते रहे। इसी के साथ आप सबको शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे आपके साथ। या ओवर टू यू अभिषेक। तो थैंक यू मैम फॉर कंक्लूडिंग रिमार्क्स। और आगे वो थैंक्स के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा फरज जी को। हेलो जी, जी मैं बोल रही हूँ। That's right. एक सेकेंड सर हाँ मैं बोल रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा ना कुछ कर रही थी। हाँ ओके, जी गुड बताइए, मैम, कुछ कह रहे थे आप। नहीं सर मैं बोल, कल कौन है पहले वही बोल ले। वोट ऑफ थैंक्स के लिए फरहत बात कर रही हूँ, मैं कर दे रही हूँ। हाँ जी फरज जी आप कर दीजिए, फिर देखते हाँ ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ, गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आई फरहत ऑन बिहाफ ऑफ सक्षम रोजगार सोसाइटी feel honored to extend a vote of thanks. I am deeply thankful to Mr. Vicky Gautam for taking a wonderful session. We look forward to more such classes. A big thank you to all of you, dear students, for your active participation and enthusiasm. I wish to acknowledge and thank all
all the senior of Saksham Bharati and Saksham Rozgar Society who graced today's class. Finally, thanks to our President Jyotika Kalada for having taken so much interest in the training session. Wishing you all very good night. थैंक यू भरत जी फोटो थैंक्स के लिए। और जैसा कि ये क्लास का भी सर आपको कल मिल जाएगा और पिछली क्लास का लिंक आपको ग्रुप में दे दिया गया है, तो अगर आपने कुछ मिस किया हो तो आप जाके दे सकते हैं। और प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इस लिंक को जो आपको कल मिलेगा। सर बाकी हम, हाँ जी ज्ञानेंद्र बताइए। सर प्राइस कब मिलेगा कल वाला जो कैसा हुआ प्राइस है? ज्ञानेंद्र? अरे अनाउंस ज्ञानेंद्र करने हम के लिए जब क्यों चेक बार बार करेंगे तो पूछ रहे कल, हो? अनाउंस कर दिया है ना, पहले सर ने किया फिर मैंने दोबारा अभी किया। सो थैंक यू एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल के नेक्स्ट सेशन में विद द सेम एनर्जी एंड द सेम टाइम।